So, adherence to practice is a big issue, which why I believe here is you have to think about it. So it is not enough if you're only going to disseminate the information. See, you know this, you do not do this. That is not enough for us. See, you just tell them do not take sweets. At home, definitely you know that all the celebrations monthly, at least to eat sweets we are celebrating. Isn't it? And you tell us people don't eat. It's a temptation. So we are in a position to teach how to control those things. So that should be your idea what you keep in your mind. So millions and millions of people with diabetes mellitus do not get access to diabetes care. So it is not what I say is, it's not if you are going to rely only on medicine or the government organizations. Individual responsibility should be there. Only then it is possible for us to control. So for this, what I said is, we all have to be little more service-minded. So I just told you, if you have to convince a person to say that yes, I will accept, this is my condition, I will start doing everything what is being told. You have to go a little out of your way. Because individual differences are there. One person may understand, one person may convince, some will not accept, you know that. Yes? So when you have to go out of the service, I just brought a saying from Albert Schweitzer. What he said, I do not know what your destiny will be. But one thing I know, the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve. So that important is about service. I just bring you one minute story. A man who died for me. He went to hell. When he went to hell, he saw that place very beautiful. Everything was there. But he saw the people are very emaciated, thin, not nourished. And he saw everything was available in that hell. He went to the dining place, food were there. Then he wanted to know why these people are so emaciated. Then he saw the spoon, they are supposed to eat with the spoon. The spoon was very long. So that means they are given certain time for them to take food. We are not able to take that food since it is long, they are not able to eat. You see, it is available, but they are not able to eat. After a few years, he was transferred to heaven. Heaven he saw even more beautiful. He saw almost all the things what was there in that heaven was all there. But the people were nourished and they were happy. Again he went to the dining place and he just found same long spoons. And he was thinking, how in the hell is same long spoons, but they were thin and malnourished. But here people are happy. How is it possible? Then he found in heaven what they were doing. They took the spoon and they were feeding others. It's a long spoon, so they were feeding others. So each one, when they were helping each other, what happened? They got the food. Faculty members of Zaid College of Nursing and my dear would-be CHOs, very happy to see you here. बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबको देखकर और मेरा बड़ा मन था कि मुझे कभी मौका मिले आप सबसे बातचीत करने का, क्योंकि हम लोग एक ऐसी यात्रा में शामिल हो रहे हैं आप लोग हमारे साथ में, जिसमें कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पब्लिक हेल्थ में हम लोग एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, स्थिति को एकदम बदलने वाले साबित हो सकते हैं। हमारे देश की और हमारे प्रदेश की जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं, खासतौर पे हमारे प्रदेश की, वो बड़ी चैलेंजिंग है। चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो, चाहे वो जनसंख्या का विस्फोट हो, माल न्यूट्रिशन हो, इम्यूनाइजेशन, कई सारी चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग एरियाज हैं। तो कई तरह के, और दूसरी बात, लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना,
कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, टोटल। केवल RCH नहीं, केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं, केवल चाइल्ड हेल्थ नहीं, बेसिक मेंटल हेल्थ, एल्डरली केयर, बेसिक ENT केयर, बेसिक ऑप्थेल्मिक केयर, तो सारी जो हेल्थ रिलेटेड नीड्स हैं वो सारी प्रोवाइड करना माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में शामिल है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के जो 2 पिलर्स हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले लॉन्च किया था, उसमें एक PMJ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कि गरीब परिवारों को, वंचित वर्गों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है। एक पिलर तो वो है आयुष्मान भारत कार्यक्रम का, और दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है आयुष्मान भारत का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, डेवलपिंग ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब हेल्थ सेंटर्स इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर मिले। हम लोग 3 साल पहले तक केवल RCH सर्विसेज ग्रामीण क्षेत्रों में देते थे, और उससे होता ये था कि केवल सर ओनली 28% people used to come to visit our health facilities in 20 केवल 28%। 72% लोग प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने के लिए जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों के, और उससे उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ज़रूरत पड़ने पर विदिन 30 मिनट्स प्राइमरी हेल्प मिल जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाए। इस दृष्टि से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्टिंग की जा रही है। आप सब लोग बहुत जल्दी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में अपनी जिम्मेवारियाँ ग्रहण करेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब इतना अच्छी आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया, कितना कोऑर्डिनेशन वाला काम था, अद्भुत। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। चाहे वो पपेट शो हो या माइम हो या जो आपने शुरू में एक और डांस हो, सब चीज़ों में इतना बढ़िया आपका आपस में कोऑर्डिनेशन था कि ऐसा लग रहा था परफेक्ट प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर यहाँ लग रहा था, जबकि इट वॉज गुड, इंडीड गुड। और अगर मैं किसी कारण से नहीं आ पाता तो मुझे बाद में बहुत अफसोस होता। तो थैंक्स टू प्रमिला मैम एंड थैंक्स टू माय डियर कोलीग प्रतीक, उन्होंने मुझे कहा कि आपको आना है इसमें। डॉक्टर मंगलगिरी साहब से मैं पहले कभी किसी दूसरे रेफरेंस में बात करता रहता था, आज सामने मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबके बीच आके बहुत खुशी हो रही है। अब काम की बात 2 मिनट में 3 मिनट में। कल वैसे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, लेकिन हम लोग आज से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। डायबिटीज़ आजकल के ज़माने की बड़ी इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर हम इस समय राइट नाउ अपने मन में कल्पना करें अपने घर की और अपने आसपास के 2-4 परिवारों की, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में किसी न किसी का पिक्चर आएगा जिसको डायबिटीज़ है। तो इसका प्रेवलेंस इतना बढ़ गया है, प्रेवलेंस मीन्स ऑकरेंस ऑफ ए डिजीज इन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका डायबिटीज़ का प्रेवलेंस इतना बढ़ गया है हमारे देश में पिछले कुछ सालों में कि अब ये चिंताजनक लेवल पर पहुंच गया है। बेसिकली 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिनको हम एड्रेस करते हैं: हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर एंड डायबिटीज। ये 4 डिजीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनको NCD कहते हैं हम लोग, इनके कारण जो मॉर्टेलिटी है, मृत्यु, इन लास्ट 3 डिकेड्स हैज इंक्रीज टू द लेवल ऑफ 62%। कुल मृत्यु का 62% अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होता है। तो डायबिटीज उनमें से एक है। आपने इतना बढ़िया बताया अभी माइम के थ्रू कि डायबिटीज उत्पन्न करने के लिए मोटापा, ओवरवेट होना और साथ में कुछ लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जिम्मेवारी क्या है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें, अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक करें, फिजिकल एक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सुस्त खाए पिए पड़े हुए हैं, उससे कैसे बाहर निकलें। तो अपने घर से ही स्टार्ट करें, बोलना समझाना, तभी आप कम्युनिटी को समझा पाएंगे। जो बोलने की क्षमता होती है, स्पीकिंग स्किल, वो आपको सबको डेवलप करना पड़ेगी, क्योंकि आप सबको कम्युनिटी में काम करना है। आपने देखा अभी पपेट शो में कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थी
वो उनको पेशेंट के घर गई हो उसको समझाने के लिए। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का अर्थ ये नहीं होगा कि वो अपने सब हेल्थ सेंटर में बैठकर मरीजों को देखेगा। दैट इज नॉट इनफ, दैट इज ओनली वन पार्ट। वो एक भाग है जिसमें आप लोगों को माइनर एलिमेंट्स के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों के बीच में जाकर, कम्युनिटी के बीच में जाकर उनमें जो हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस डिसेमिनेशन। और सूचना देना कोई सामान्य काम नहीं होता। कम्युनिकेशन करना सामान्य आर्ट नहीं है, बड़ी स्पेशल आर्ट है। इस तरह से अपनी बात को रखना कि लोग आपकी बात से सहमत हों